Jai Shri Swaminarayan. SSGM School CBSE runs by Sri Sahajanand Gurukul Mankua welcomes you to the online education platforms. Student of class 10, I am Brijesh Davi. Today we are going to learn our first chapter in economics SST, and the name of the topic chapter is development. So, before I start to discuss about the topic, let us introduce you about which point we will discuss in this video. So, in this video we will discuss two main points of the lesson, that is what development promises, different people, different goal, and then we will discuss about the income and other goals of the people. So, let us begin the chapter. First of all, I read each paragraph of the lesson, and then after we will discuss about it. So, the idea of development or progress has always been with us. We have aspirations or desires about what we would like to do and what we would like to live. So, you know friends, we have ideas of development, not with us in just some time ago or some years ago, but it is always with us. And you know, it is we can say that it is comes in our mind with the birth of a human being. So, similarly, if I talk about any individual person, the person also wants also have an idea or desire or aspiration about himself, that what he want to do in his life, और वो अपनी लाइफ में क्या बनना चाहता है, वो क्या पाना चाहता है, तो इस तरह के ख्याल उसके दिमाग में होते हैं. So, similarly, we have ideas about what a country should be like. तो इसी तरह से हम सबके दिमाग में ऐसे भी आइडियाज़ होते हैं कि हमारी कंट्री, हमारा देश कैसा होना चाहिए, हमारे देश में कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए, हमारा देश कैसे डेवलप्ड होना चाहिए. So, what are the essential things that we require? Can life be better for all? How should people live together? Can there be more equality? So, this type of questions always arise when we discuss about the development of the countries, and not just question, but also we can get the solution of this question and answer of these questions when we will discuss about the development of the country. So, if we think that development is a easy task, then this is wrong. This is a complex task, and in this chapter we shall make a beginning at understanding development. So, दोस्तों हम इस चैप्टर के अंदर बहुत डीपली हम इस चैप्टर को अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट को बहुत डीपली नहीं जाने वाले हैं, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ डेवलपमेंट क्या है उसको समझने का प्रयास करने वाले हैं. सो friends, you will learn more about these issues in greater depth in your higher classes. It means that you can learn more about development in your higher classes, and also you will find answers to many of these questions not just in economics but also in your courses in history and political science. यानी कि जो इधर क्वेश्चंस दिए हुए हैं अबाउट रिलेटेड टू डेवलपमेंट, वो सारे क्वेश्चंस आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस जो आपके सब्जेक्ट हैं उसमें भी सेम तरह के क्वेश्चंस और इसके रिलेटेड सॉल्यूशंस और आंसर आपको मिलेंगे. सो दिस इज बिकॉज द वे वी लिव टुडे इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट. ऐसा इसलिए है कि जो हम आज जी रहे हैं वो हमारे इतिहास से रिलेटेड है, यानी कि हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड है. हम जो भी आज कुछ हैं वो सब हमारे इतिहास के वजह से है. सो वी कांट desire for changes without being aware of this. So, we cannot able to desire any kind of change without aware of these facts. In the same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. So, हमारी जो भी होप्स हैं, जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो सब हमारे यहाँ एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस, यानी कि हम एक लोकशाहीकृत राज सत्ता में रहते हैं. ठीक है, तो उसमें एक प्रोसेस होती है कि हमारी जो भी नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स है, उसको एक प्रोसेस के तहत पूछा किया जाता है. सो फ्रेंड्स, दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक. नाउ लेट अस बिगिन द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस
chapter, that is what development promises, different people, different goals. So in this chapter, look here, let us try to imagine what development or progress is likely to mean to different person listed in table number 1.1. So friends, you can look in your textbook page number 4, you can find here a table that shows the categories of a persons and their development goals and aspiration. And what are their aspirations? You will find that some columns are partially filled. Try to complete the table. You can also add any other categories of person. So दोस्तों यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जिसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज के पर्सन्स की लिस्ट है और दूसरे कॉलम उसके सामने है, उसमें पर्टिकुलर जो कैटेगरी के पर्सन्स हैं उनके कैसे डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनके कैसे एस्पायरेशन है वो दिया गया है. तो देखते हैं. तो पहला लैंडलेस रूरल लेबरर्स, यानी कि जो ऐसे लेबर है जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, वैसे मजदूर की बात की गई है. तो उनके डेवलपमेंट गोल्स कैसे होंगे, उनकी एस्पायरेशन कैसी होगी, तो वो क्या चाहेंगे, दे वांट मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस. Local school is able to provide quality education for their children. There is no social discrimination and they too can become leaders in the village. तो जो लैंडलेस रूरल है उनका डेवलपमेंट गोल ऐसा होगा कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, उनको जो काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनको अच्छा वेतन मिले, एंड जो उनके बच्चे हैं, जो बच्चे हैं उनको जिधर भी वो रहते हैं उधर की जो लोकल स्कूल है उसमें उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले. और प्लस में वो ऐसा भी चाहेंगे कि वो जहाँ भी रहते हैं उधर उनके साथ किसी भी प्रकार का सामाजिक जो भेदभाव होता है वो ना हो, और वो ऑल्सो ऐसा भी चाहेंगे कि वो लोग अपने गांव में लीडर बने. देन प्रॉस्पेरियस फार्मर फ्रॉम पंजाब. उसके बाद जिस कैटेगरी के पीपल की बात की गई है वो है प्रॉस्पेरियस फार्मर फ्रॉम पंजाब, यानी कि पंजाब जो राज्य है हमारा उसके जो कुछ अमीर फार्मर्स हैं उनकी बात की गई है. तो उनके एस्पायरेशन एंड गोल्स क्या होंगे, दे अश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइजेस फॉर देयर क्रॉप्स and through hard working and cheap laborer they should be able to settle their children abroad. यानी कि उनके एस्पायरेशन और गोल्स ऐसे होंगे कि उन्होंने जो भी अपने खेत खलिहान में जो बोया है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार का प्राइजेस मिले ताकि वो ज़्यादा उनकी इनकम हो, और उसके साथ उनको हार्ड वर्किंग और सस्ते दामों में लेबर यानी कि चीप लेबर मिले. और दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अबॉर्ड, यानी कि वो अपने बच्चों को बाहर भेज सके पढ़ने के लिए. देन यू कैन सी द कैटेगरी ऑफ अ पर्सन दैट इज फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. उसके बाद जिस कैटेगरी के पर्सन की बात की गई है वो है फार्मर जो सिर्फ और सिर्फ अपने खेत का रेन यानी कि बारिश पे जो निर्भर है, उस फार्मर की बात की गई है. तो उसके डेवलपमेंट गोल्स कैसे होंगे, तो हम कह सकते हैं कि उसके डेवलपमेंट गोल्स होंगे कि वो अच्छी बारिश हो जिससे उसके खेत में अच्छी पैदावार हो और उसके अच्छे दाम मिले ताकि वो अपने परिवार को चला सके. देन कम्स अ रूरल वुमन फ्रॉम अ लैंड ओवनिंग फैमिली. उसके बाद एक स्त्री की बात की गई है, एक वुमेन की बात की है जो लैंड ओवनिंग फैमिली से आती है. तो उसके एस्पायरेशन और उसके गोल्स क्या होंगे, तो उसको सोशली डिस्क्रिमिनेट यानी कि उसके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, उसको इक्वली ट्रीट किया जाए, उसको पढ़ाई के लिए बाहर जाना हो तो वो जा सके, उसको फ्रीडम मिले, उस तरह के उसके भी गोल्स होंगे. देन कम्स अन अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, यानी कि उसके बाद जिस कैटेगरी के पीपल की बात की गई है वो है अनएम्प्लॉयड यूथ. अर्बन से जो शहर में रहने वाले बेरोजगार युवा है उसकी बात की गई है. तो उसके डेवलपमेंट गोल क्या होंगे, तो उसको अच्छी जॉब मिले, उसको अच्छा पगार मिले यानी कि सैलरी मिले जिसके वजह से वो अपने फैमिली को चला सकें. देन अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली. उसके बाद जो है, उसके बाद जिस कैटेगरी के पर्सन की बात की गई है वो है अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, यानी कि जो
अमीर घराने के लड़के हैं उनकी बात की गई है, तो उनके एस्पायरेशन एंड उनके गोल्स कैसे होंगे, तो वो उनके पास अच्छी कार हो, उनके पास अच्छे कपड़े हो, वो जहाँ मर्जी हो वहाँ घूमने जा सकें. सो दिस काइंड ऑफ एस्पायरेशन may be of a rich boy from a urban family. Now then comes a girl from a rich urban family. So she gets as much freedom as her brother and is able to decide what she wants to do in life. She is able to pursue her studies abroad. यानी कि उसके एस्पायरेशन गोल ऐसे होंगे कि वो जैसे उसके ब्रदर को ट्रीट किया जाता है वैसे ही उसको भी इक्वालिटी मिले, उसको भी अच्छा जहाँ भी घूमने जाना हो जैसी फ्रीडम उसके ब्रदर को मिलती है वैसी मिले, और वो भी अपनी स्टडी के लिए बाहर जा सके. सो दिस काइंड ऑफ कैटेगरी एंड देयर डेवलपमेंट गोल्स वी गेट द अंडरस्टैंडिंग. नाउ लुक एट द बॉटम. हैविंग filled टेबल नंबर 1.1, let us know, examine it. Do all of these persons have the same notion of development or progress? अब इधर एक प्रश्न पूछा गया है कि जो टेबल नंबर 1.1 में जो कैटेगरी के पर्सन्स और उनके जो डेवलपमेंट गोल्स और एस्पायरेशन दिए हुए हैं क्या वो सभी एक ही तरह के हैं, तो हम कह सकते हैं कि मोस्टली लाइक नॉट, नहीं, सभी के अलग अलग हैं. ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग्स, यानी कि जो सभी लोग हैं वो अलग अलग प्रकार की अपनी ज़रूरतें बताते हैं, और दे सीक्स थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर देम, और मोस्टली वो ऐसी ही चीज़ें की मांग करते हैं जो उनके लिए ज़्यादा महत्व की हो. So in fact, at times, two persons or group of persons may seek things which are conflicting. कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि जो दो व्यक्ति हैं या जो दो ग्रुप हैं उनकी जो गोल्स और उनके जो थिंग्स जिसकी वो नीड करते हैं वो कहीं बार कॉन्फ्लिक्टिंग यानी कि विरोधी भी हो सकती हैं. तो उसके लिए एक इधर उदाहरण दिया गया है कि अ गर्ल्स एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर एंड दैट ही ऑल्सो शेयर इन द हाउस होल्ड वर्क. यानी कि एक गर्ल्स है वो कैसी अपेक्षा यानी कि क्या एक्सपेक्ट करती है कि उसके ब्रदर को जितनी अपॉर्चुनिटी और फ्रीडम दी जाती है उतनी ही फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी उसको भी दी जाए, और उसका ब्रदर उसके साथ उसके घर काम में भी हाथ बढ़ाए यानी कि उसकी हेल्प करे. उसके बाद दूसरा ऐसा ही उदाहरण है, सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट्स मे वांट मोर डैम्स but this may submerge the land and disrupt the lives of people who are displaced, such as tribals. They might resent this and may prefer small check dams or tanks to irrigate their land. यानी कि अब जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके एस्पायरेशन और उनके डिज़ायर कैसे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े डैम्स बनाए जाए, लेकिन तभी उनके विरोध में जो ट्राइबल्स होते हैं, जो नदी के किनारे रहने वाले जो आदिजन होते हैं, उनके डिज़ायर कैसे होंगे कि ना डैम ना बने बल्कि छोटे छोटे चेक डैम बने और टैंक बने ताकि उनकी ज़मीन बची रहे, उनकी ज़मीन पानी में डूब न जाए. सो फ्रेंड्स, टू थिंग्स are quite clear that one is we can here already write that different people can have different goals, यानी कि जो हर एक इंसान के अलग अलग अपने गोल्स होते हैं, और then what may be development for one may not be development for other. यानी कि जो डेवलपमेंट किसी एक के लिए मायने रखता है वही उसी प्रकार का डेवलपमेंट दूसरे इंसान के लिए मायने ना भी रखता हो. यानी कि डिफरेंट पीपल हैव देयर डिफरेंट गोल्स एंड देयर एस्पायरेशन. सो फ्रेंड्स, द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड. नाउ लेट अस start another important point of this chapter, that is income and other goals. So friends, look in your textbook. If you go over table 1.1 again, you will notice one common thing. अगर आप टेबल 1.1 को दूसरी बार देखें तो आपको एक चीज़ कॉमन
दिखेगी वो है कि what people desires are regular work, better wages and decent prices for their crops or other products that they produce। यानी कि अगर हम टेबल 1.1 को अगर दूसरी दफ़ा देखें तो हमको एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी और वो है कि जो भी पीपल सबसे ज़्यादा डिज़ायर करते हैं वो क्या है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, यानी कि रेगुलर वर्क मिले, उनको बेटर वेजेस यानी कि उनको अच्छी वेतन, उनको अच्छी सैलरी मिले, एंड डिसेंट प्राइजेस फॉर देयर क्रॉप्स एंड द प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस, यानी कि वो जो भी अपने खेत में बो रहे हैं उसकी पैदावार के उनको अच्छे प्राइजेस मिले और जो भी चीज़ जो वो बना रहे हैं प्रोड्यूस करें उनके प्रोडक्ट्स को अच्छे प्राइजेस मिले। In other words, we can say that they want more income, यानी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मनी यानी कि पैसा चाहिए। Besides seeking more income, one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security and respect of others। पर सिर्फ इनकम ही ज़्यादा महत्व की नहीं है, इनकम के अलावा भी पीपल यानी कि लोगों को क्या चाहिए और भी equal treatment, freedom, security and respect of others, they resent discrimination, all these are important goals। यानी कि सिर्फ पैसा ही एक important goals नहीं है, उसके अलावा भी लोगों को एक equal treatment चाहिए होती है, freedom, security and respect for others। In fact, in some cases they may be more important than money, more income or more consumption, because material goods are not all that you need to live। यानी कि कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि सिर्फ पैसा ही हमारे जीवन में सब कुछ नहीं होता, उसके अलावा भी जो चीज़ें हैं, जो क्राइटेरिया हैं, वो भी हमारे लाइफ में बहुत मायने रखते हो और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हो। Look here, money or material things that one can buy with it is one factor on which our life depends, but the quality of our life also depends on non-material things mentioned above। यानी कि ये बात सही है कि हमारे जीवन में पैसे बहुत कीमती हैं, पैसे की वजह से ही हम जो अपनी ज़रूरियात होती है उनको हम सब संतोष यानी कि उसको हम सब पूरी कर सकते हैं, लेकिन पैसे के अलावा भी बहुत ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जैसे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो कि नॉन मटेरियल थिंग हैं, उसकी भी ज़रूरत हमारे जीवन में बहुत सारी है। इफ़ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू, अगर आपको ये बात नहीं समझ में आती हो तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है कि देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स, यानी कि आप अपने दोस्त के रोल, आपके जीवन में आपका दोस्त का क्या रोल है उसके बारे में सोचिए, तो आपको पता चलेगा कि आप उसकी फ्रेंडशिप को चाहते हैं, आपको उसकी फ्रेंडशिप की ज़रूरत है। सिमिलरली देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट ईजीली मेजर्ड बट दे मीन्स अ लॉट टू अवर लिव्स, यानी कि इसी तरह से फ्रेंडशिप की तरह से ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व की हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिसाइड्स अ मोर इनकम देयर आर ऑफ्टन इग्नोर्ड, पर हम उसको कई दफ़ा इग्नोर करते हैं। However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important। यानी कि अगर हमारी लाइफ में जो मेजर्ड यानी कि हम जिसको नाप नहीं सकते वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, वो रॉन्ग है। अगर आपको ये भी ना समझ आया हो तो इधर उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि कंसिडर इट अनदर एग्जाम्पल, इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, बिफोर एक्सेप्टिंग इट you would try to consider many factors apart from income, such as facilities for your family, working atmosphere, or opportunity to learn. In another case, a job may give you less pay, but may offers regular employment that enhance your sense of security. Another job, however, may offers high pay, but no job security and also leaves no time for your family. This will reduce your sense of security and freedom। तो यहाँ पर दोस्तों कई उदाहरण दिए हुए हैं कि अगर आप जहाँ रह रहे हैं
उधर से कहीं दूर की जगह पर आपको अगर जॉब मिलती है तो आप सिर्फ इनकम यानी कि पैसे ही नहीं देखेंगे कि आपको कितनी सैलरी मिलती है, लेकिन उसके साथ आपको कौन सी अदर फैसिलिटीज़ मिलती है, यानी कि आपको सच है आपकी फैमिली के लिए क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, उधर का वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, एंड सीखने अपॉर्चुनिटी टू लर्न यानी कि आपको उधर क्या क्या सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं, वो भी आप देखेंगे। इसी तरह अगर आपको कहीं जॉब मिले जो आपको सैलरी भले ही कम देती हो लेकिन वो आपको सिक्योरिटी देती हो जॉब की और आपको फैमिली टाइम भी देती हो, तो उसके प्रति आपका सेंस ज़्यादा इंक्रीज होगा, यानी कि आपका सेंस ऑफ सिक्योरिटी ज़्यादा रहेगा। और उसी के अगेंस्ट अगर आप देखें तो आपको अगर ऐसी जॉब मिले जिसमें आपको सैलरी ज़्यादा मिलती हो लेकिन आपको जो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए जॉब की वो ना मिले और आपको फैमिली के लिए टाइम भी ना मिलता हो, तो आपका उसके प्रति ज़्यादा लगाव नहीं रहेगा। सो सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट में भी पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल, यानी कि डेवलपमेंट में जब बात करते हैं तो उसमें भी लोग हमेशा मिक्स में अपने गोल्स दर्शाते हैं। It is true that if women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increase. However, it is also the case that if there is a respect for women, there would be more sharing of housework and a great acceptance of women working outside. A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of job or runs a business. तो अगर हम देखें तो डेवलपमेंट के प्रति हमारे सबके अलग अलग मिक्स गोल होते हैं। और अगर आपको ये ना समझ आया हो तो इधर एक फिर से एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर किसी वुमेन को पेड वर्क में यानी कि कोई काम में हाउस होल्ड वर्क में वो है तो उसकी डिग्निटी और उसके लिए प्रति जो हमारा मान है वो सोसाइटी में बढ़ जाता है। और अगर इसी तरह से वुमेन को आउटसाइड बिजनेस में और हाउस होल्ड शेयरिंग किया जाए उनके साथ तो उनकी डिग्निटी बढ़ जाएगी और उसी के साथ वो अपना बेहतर प्रदर्शन यानी कि अपनी बेहतर जो स्किल है वो आपके सामने रख सकेंगी। So hence the development goals that people have are not only about better income but also about other important things in life. तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये सीखने मिलता है कि डेवलपमेंट गोल दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ लाइफ, यानी कि सिर्फ पैसा ही हमारे जीवन का इम्पोर्टेंट गोल नहीं है बल्कि उसके साथ जो अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों इस पॉइंट्स के अंदर हमें ये सीखने का मिलता है कि पीपल प्रिफर टू अर्न मोर इनकम टू फुलफिल देयर डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ, यानी कि जो लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम चाहते हैं ताकि वो अपने जीवन में जो ज़रूरियात जो ज़रूरी चीज़ हैं जो चीज़ें वस्तु जो डिज़ायर हैं उनके वो पा सके। उसी के साथ बट people also wants non-material things like freedom, equal treatment, security, respect, etc. यानी कि सिर्फ मटेरियल थिंग्स ही नहीं उसके साथ जो नॉन मटेरियल्स थिंग्स हैं जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम है, सिक्योरिटी है और रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, वो सारी चीज़ों को भी वो रिक्वायर करते हैं। तो दोस्तों टुडे वी विल लर्न 2 important points of this chapter. So you can look at in your textbook, you can find the let's work out exercise that you have to done in your fair books. Thank you so much friends. Jai Shri Swaminarayan.